So we're almost done. We just have management left. सबसे पहले ATLS for protocols को हम follow करके stabilization करेंगे जिसमें airway breathing circulation है. We elevate the head at 30 degrees and we give IV mannitol or a hypertonic saline if there is raised ICP. ठीक है? Because we know कि ये मैं बताती हूँ and monitor GCS in pupils. So that is just the initial stabilization. इसकी थोड़ी सी वो कर लेते हैं reasoning ताकि it's easier to like remember and recall. So the first thing we do is like, of course, we stabilize the airway, we do breathing and recirculation. Elevate the head हम इस वजह से करते हैं कि अगर ICP raised है ना तो gravity से हो सकता है कि थोड़ा सा brain का edema resolve हो जाए. IV mannitol we know कि it's an osmotic agent and it will lead to sort of the water content moving out. And then hypertonic saline का ये scene है कि when we give something that is hypertonic, तो what that means is कि it has high salt content and less water. ठीक है? तो what it'll do is it'll draw out the water from the capillaries outside. Like it'll draw out water and वो जो water है वो IV mannitol के साथ wash out हो जाएगा if there's raised ICP. And what we do is we monitor GCS or pupils क्योंकि हम monitoring constantly कर रहे होते हैं. Definitive management क्या है? This is just stabilization, surgical ये है कि अगर extradural hemorrhage का volume is more than 30 centimeters cube, remember this number, या there is a midline shift, ठीक है? What this means is कि the brain is being pushed to one side due to pressure from the hematoma. This is called mass effect, ठीक है? So just think about it कि hematoma बन रहा है between the skull layer and the dura layer and it begins to push on the internal contents के midline shift हो रही है और जब midline shift हो रही है this is a mass effect or this compresses the brain structures. On CT scan you'll see the midline structures of the brain shifted away. तो GCS ये अगर less than 8 or worse है ये focal neurological deficit है. For example मैंने कहा था कि वो paralysis हो जाए, limb में weakness हो जाए, dilated pupil हो जाए क्योंकि brain herniation हो सकती है, speech या vision problem हो जाए, तो we need to think about surgery. These are just the indications जो कि मैंने बताई हैं, ठीक है? लेकिन surgical options क्या है? दो चीज़ें, craniotomy and burr holes. So what is craniotomy? We evacuate a clot. We make an incision in the cranium or in the skull. ठीक है? We evacuate the clot. We control the bleeding, and a flap is made to access the brain. ठीक है? So flap हमने बनाया, उससे हमने क्या किया? हमने क्लॉट को इवैक्यूएट किया और हमने ब्लीडिंग को कंट्रोल किया. बर्र होल्स का क्या है? स्मॉल वॉल्यूम हीमेटोमा के लिए या इमरजेंसीज के लिए. होल्स आर ड्रिल्ड इन द ब्रेन, ठीक है? और उससे फिर हम ब्लीडिंग मैनेज करते हैं. सो साइज ऑफ ओपनिंग क्रेनियोटमी लार्ज है, इसमें स्मॉल है, स्लोअर है, ठीक है? ये फास्टर, इमरजेंसी फ्रेंडली है. एक्सेस लेकिन इसका ज़्यादा है क्योंकि हमने ब्रेन ही ज़्यादा इंसिजन ही बढ़ा दिया. इसमें लिमिटेड व्यू है. ब्लीडिंग हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कंट्रोल पॉसिबल, ठीक है? इसमें लिमिटेड है एंड वी माइट नीड फर्दर सर्जरी, ठीक है? और ये डिफिनेटिव ट्रीटमेंट है, दिस इज़ जस्ट एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट. अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम कब करते हैं? वॉल्यूम इज़ लेस दैन 30, थिकनेस इज़ लेस दैन 15 mm के. एक तो ब्लड का वॉल्यूम कितना लीक किया ना, एक ये है कि वो इसका अपनी थिकनेस कितनी होगी बिटवीन द स्कल एंड द ड्यूरा, इफ दैट मेक्स सेंस. इफ इट्स less than 15 mm. If there's no midline or mass effect and the GCS is more than 8 and no focal deficits, so then we're going to go for conservative care. Conservative में ICU observation है and then we keep doing neurological exams and we repeat imaging. ठीक है? So that's just how we do it. ठीक है? फिर उसके बाद ये है कि prognosis का क्या है कि लेस दैन 30% में ये है, डिले डायग्नोसिस हो जाता है तो बेटर आउटकम अर्ली सर्जरी. यंगर एज या हाई GCS ऑन प्रेजेंटेशन दिस इज इन दैट इंपॉर्टेंट. अगर ओल्डर एज है, लो GCS है या अनकल हर्निएशन है, क्योंकि इससे हमने क्या था कि फिक्स्ड प्यूपल्स हो जाते हैं एंड लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है? तो डिले इन डायग्नोसिस. की पॉइंट समरीज क्या है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ एवरीथिंग. मिडल मेनिंजियल आर्टरी का वो है LOC, लूसिड इंटरवल एंड देन रैपिड डिटोरिएशन, जिसमें हमने कहा था वॉमिटिंग, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, सीजर्स, ये हो सकते हैं. CT स्कैन पे बाइकॉन्केव है, हाइपरडेंस, लिमिटेड बाई सूचर्स. सर्जरी इंडिकेशन इज मोर देन 30, मास इफेक्ट है, लो GCS या हमारे पास फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं. कॉम्प्लिकेशंस में हर्निएशन, कोमा, डेथ. प्रोग्नोसिस डिपेंड्स ऑन द GCS, द सर्जिकल टाइमिंग. अच्छा, इसमें हमने ये कि सो दिस इज सॉर्ट ऑफ जस्ट लाइक अनरिलेटेड बट दिस इज लाइक व्हेन डू यू डू CT and when do you add contrast, ठीक है? So this is just sort of answering this question. So इसमें अगर हम देखें तो
अगर ब्रेन, ठीक है, ट्रॉमा या ब्लीडिंग है तो वी डोंट यूज़ कॉन्ट्रास्ट बिकॉज ब्लड इज हाइपरडेंस नेचुरली, सो वी डोंट नीड दैट इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट। लेकिन अगर ट्यूमर या इन्फेक्शन है तो हो सकता है वो छुपा हो और उसको हमें इल्यूमिनेट करना पड़े, तो वी डू गिव कॉन्ट्रास्ट बिकॉज इट एनहांसेस द लीजन। लेट्स मूव ऑन टू द चेस्ट, ठीक है। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या कैंसर है तो हम देंगे बिकॉज वैस्कुलर सॉफ्ट टिश्यू डिटेल को, क्योंकि वो हमें पता है जो कैंसर है या जो ट्यूमर है वो हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर हो जाता है, तो वी नीड टू अपटेक दिस। एब्डोमेन में अगर ये है तो तभी इसी वजह से हम करते हैं, क्योंकि वो इन्हांस कर देते हैं ना। किडनी स्टोन्स हम क्यों नहीं करते, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट है ना, हो सकता है स्टोन इतना छोटा होता है कि इट कैन हाइड द स्टोन। बोन्स और फ्रैक्चर्स में वी डोंट बिकॉज वो हाइपरडेंस नेचुरली है। वैस्कुलर स्टडीज़ में हम करते हैं क्योंकि जो ब्लड है वो वैसे ही इल्यूमिनेट करेगा, तो हम कॉन्ट्रास्ट क्यों देते हैं, ताकि वेसल्स की जो आउटलाइन है वो इल्यूमिनेट हो जाए, ठीक है, दैट्स वाई। तो जब भी वैस्कुलर स्टडीज़ होंगे तो वी डू गिव कॉन्ट्रास्ट।